باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج یہ دوسرا اس کا حصہ ہے راہ نجات، اور پچھلے حصے میں ہم نے سیکھا کہ نجات صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے یہی کہا تھا اپنی زمینی زندگی میں کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ آج ہم اسی راہ نجات کا دوسرا حصہ دیکھنے کو ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ بھی میسج جو ہے آپ کو پسند آئے گا اور آپ کو برکت ملے گی، اور آپ ہمیشہ ہی خدا کی آواز، خدا کے کلام کو سنتے اور برکت پاتے ہیں۔ اور آج ایک بار پھر آپ کا بھائی، آپ کا دوست برادر ولسن کامران آپ کے سامنے حاضر ہے، اور خدا کی آواز خدا کے کلام میں سے لایا ہے۔ ہم رسولوں کے اعمال بک آف ایکٹس اس کا 16ویں باب میں سے آج دیکھیں گے کہ خدا کے کلام میں میرے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے، اور اس کی 16ویں آیت کی 25ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا کہ نجات کی خوشخبری جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے، اور ہم کیسے اس نجات کو، اس راہ کو جان سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، آدھی رات کے قریب پالوس اور سلاس دعا کر رہے تھے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور قیدی جو سن رہے تھے، اور لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ یک بڑا بچال آیا، اور یہاں تک کہ قید خانے کی نیو ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے جو تھے وہ کھل گئے، اور سب کی بیڑیاں جو ہیں وہ کھل گئیں، یعنی وہ راستے کھل گئے جس میں وہ جکڑے ہوئے تھے، یعنی وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، وہ کھل گئیں۔ اور لکھا ہے 27ویں آیت میں، اور دروغہ جاگ اٹھا اور قید خانے کے دروازے پر جا کر جب دیکھتا ہے کہ قیدی بھاگ رہے ہیں، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی تلوار جو ہے وہ کھینچی تاکہ اپنے آپ کو مارے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مارنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اس کو جو ڈیوٹی دی گئی تھی کہ تو اس قید خانے کی رکھوالی کرنی ہے تاکہ خدا کے جو سورما ہے دو، پالوس اور سلاس جو ہے وہ یہاں سے بھاگ نہ سکیں۔ لیکن وہ جب دیکھتا ہے کہ وہ تو یہاں موجود نہیں ہے، دروازے کھل گئے ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کوشش کی کہ وہ تلوار نکال کر اپنے آپ کو مار ڈالے۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پالوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم موجود ہیں۔ اور وہ چراغ منگا کر اندر چلا گیا اور دیکھا کہ پالوس اور سلاس جو ہے اس کے آگے گر گئے ہیں، اور انہیں باہر لا کر کہا، اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ یعنی دروغہ جو ہے وہ بھی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، وہی چاہتا ہے کہ وہ خدا کی راست بازی کو حاصل کرے۔ اور 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لا، تو تیرا گھرانہ جو ہے نجات پائے گا۔ اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خدا ان کا کلام سنایا، اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے، اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا، اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا، اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی۔ یعنی آج بہت سارے لوگ جو ہیں آج یسوع مسیح پر ایمان لا کر نجات حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس اور سلاس جو تھے وہ بھی نجات یافتہ تھے، اور اس وفاداری کے سبب سے خدا نے یہ بہت بڑا کام کیا کہ وہاں ایک بہت بڑا بچال آتا ہے، اور قید خانے کی نیو جو وہ ہل جاتی ہے، اور دروازے کھل جاتے ہیں، ان کی بیڑیاں کھل جاتی ہیں، اور وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور جو دروغہ ہوتا ہے وہ قید خانے کو جب دیکھتا ہے کہ دروازے کھل گئے ہیں تو وہ بہت گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ خدا نے کیا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا جو ہے وہ آج میرے اور آپ سے بھی کلام کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ خدا اپنے اس خمیر کو اٹھانا چاہتا ہے، خدا اس گناہ کو جو دنیا میں ہے اس کو اٹھانا چاہتا ہے، اور اس راہ کو بحال کرنا چاہتا ہے جس میں اس کو خدا لے جانا چاہتا ہے، یعنی وہ راہ جہاں خداوند یسوع آپ کو لے جانا چاہتا ہے۔ اور رسولوں کے اعمال اور اس کے 15ویں باب اور اس کی 16ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد میں پھر آ کر داؤد کے گرے ہوئے خمیر کو اٹھاؤں گا، اور اس کے پھٹے ٹوٹے کی مرمت کر کے اسے کھڑا کروں گا، تاکہ باقی آدمی سب قومیں جو میرے نام کی کہلاتی ہیں خداوند کو تلاش کریں۔ آج قومیں جو ہیں خداوند کو تلاش کر رہی ہیں، لیکن وہ ایماندار، وہ بہن بھائی بیٹے بیٹیاں جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، وہ یسوع مسیح کی راہ کو جانتے ہیں۔
लिखा है कि ये वही खुदावंद फरमाता है जो दुनिया के शुरू से इन बातों की खबर देता आया है, क्योंकि खुदा ने इब्तिदा में ही सब कुछ बता दिया था और हर एक इंस्ट्रक्शन जो थी नस्ल इंसानी को दे दी थी, ताकि इंसान जो है उसके हुक्मों को माने, उसके कलाम को माने और उस राह को जाने, क्योंकि यीशु मसीह ही राह हक और ज़िंदगी है। और लिखा है, बस मेरा फैसला यह है कि जो गैर कौमों में से खुदा की तरफ रुजू होते हैं उनको तकलीफ ना दे, मगर उनको लिख भेज कि बुतों की मकरूहात, हरामकारी और गला घोटे हुए जानवर और लहू से परहेज करें, क्योंकि कदीम ज़माने से हर शहर में मूसा की तौरात की मुनादी करने वाले होते चले आए हैं और वो हर सब्त को इबादत खाने में सुनाई जाती हैं। उस वक़्त भी खुदा का कलाम जो है वो इबादत खानों में, सिनागॉग में सुनाया जाता था। खुदा के कलाम की जो मनादी की जाती थी और खुदा के कलाम में बताया जाता था कि हमें किस तरीके से उस राह को पहुंचना है। लेकिन लोगों के पास उम्मीद नहीं थी, लोगों के पास खुशखबरी नहीं थी, क्योंकि वो गैर मबूदों को पूजते और उनके रास्तों पर चलते और उनको अपनी ज़िंदगियों में खुदा मानते थे। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक ही खुदावंद है। लिखा है कि जो था और जो है और जो आने वाला है, वो कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, इब्तिदा और इंतहा हूं। वही हमारी सिपर, हमारी ढाल, हमारी जिंदगी का लंगर, छुपने की जगह और मोहकम किला है। खुदा के कलाम में लिखा है, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुदस इनाम में पाओगे। ये बड़ी खूबसूरत उम्मीद खुदावंद ने अपने रसूलों को दी और खुदाम यीशु मसीह ने यह कहा कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम तौबा करो। अगर आज हम उस राह को हासिल करना चाहते हैं, उस निजात में दाखिल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारा फोकस जो है निजात के लिए हमें तौबा करनी है। अपने मुंह से इकरार करना है कि यीशु मसीह निजात दहिंदा है। और तुम में से हर एक घर के अंदर, खानदानों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, मुल्कों के अंदर जो भी शख्स खुदाम यीशु मसीह की मुनादी करना चाहता है, खुदा के कलाम को बयान करना चाहता है, खुदाम यीशु मसीह की उन बरकत को रिसीव करना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो तौबा करे। इसलिए खुदा ने कहा था कि तुम में से हर एक शख्स जो है वो यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, ताकि हम उस अनाम को हासिल करें। और वो अनाम जो है वो आसमान की बादशाही है। और पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने और सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। हालेलुया। यानी हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वही निजात है, और निजात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीले से ही है, और राह यीशु मसीह के वसीले से ही हमारी ज़िंदगी में है। और रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत में बड़ी खूबसूरत उम्मीद हमें नजर आती है, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती है। लिखा है उसके 10वें बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में, मेरे और आपके लिए, और मैं आपके लिए तिलावत कर देता हूं। लिखा है, अगर तू अपनी जुबान से यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो निजात पाएगा। हालेलुया। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी और खुदा अपने लोगों को ये बताना चाहता था, सिखाना चाहता था कि राह किस तरीके से तुम हासिल कर सकते हो। और खुदा ने पौलुस रसूल के जरिए रोमियों को ये बताया। जितने भी रोमन लोग थे, खुदा ने उनसे कलाम किया। खुदा आज पाकिस्तानियों से कलाम करता है, खुदा आप यूरोप अमेरिका से कलाम करता है। खुदाम जितने भी खुदाम दुनिया में खिदमत करते हैं, खुदा उनके ज़रिए कलाम कर रहा है, ताकि लोग जो है उस राह को जान सकें, उस निजात को हासिल कर सकें। क्योंकि निजात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीले से है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर हम अपनी ज़बान से यीशु मसीह के होने का इकरार करेंगे और अपने दिल से ईमान लाएंगे, आज हमें दिल से ईमान लाना है। और खुदावंद के बंदा
मुक़द्दस दाऊद, बुजुर्ग दाऊद ने कहा था कि मैंने खुदा के कलाम को क्या किया, अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब आप खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लेंगे तो फिर कोई गुनाह आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा और आप खुदा की उस वफादारी में, उस कवनेंट में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि खुदा की यही मर्जी थी कि उसके लोग जो हैं वो बहाल किए जाएं। यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद यही था कि आपको उस गुलामी में से छुटकारा दिलाए, उस राह पर लेकर जाए कि जिस पर जाना आपके लिए ज़रूरी था। और अगर आज हमारे पास कोई खुशखबरी नहीं है तो फिर ज़रूरी है कि हम उस खुशखबरी को अपनी ज़िंदगी में हासिल करने के लिए अपनी उम्मीद, अपना तवक्कुल, अपना लाइन ऑफ डायरेक्शन जो है खुदावंद यीशु मसीह की तरफ कर लें। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है इफ्सियों के ख़त में कि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। यानी खुदा की ये शुरू से मर्जी थी कि उसके लोग जो हैं वो बहाल किए जाएं, निजात हासिल करें और उस ईमान के बानी जो कामिल करने वाला है यीशु को देखते रहें। और यहाँ इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल के खत में बहुत ही बड़ी और खूबसूरत बात मेरे और आपके लिए तहरीर कर दी गई और बयान कर दिया गया कि आज जो कोई भी यीशु मसीह पर ईमान लाएगा तो वो निजात हासिल करेगा। क्योंकि लिखा है कि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है। फजल जो है ये खुदावंद का ज़ाहिर हुआ है और ये खुदा की बख्शिश है, खुदावंद का गिफ्ट है, खुदावंद का तोहफा है कि हमें निजात मिल गई है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत पहला बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। अगर आप खुदावंद का नाम लेंगे तो निजात पाएंगे। और ये बड़ी खूबसूरत और मेरे और आपके लिए हौसला अफजा बात है कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना के इंजील उसके 6 बाब और 38 वर्ष में लिखा है कि जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल ना दूंगा। यानी यीशु मसीह जो है वो आपको बुलाना चाहते हैं, आपको लाना चाहते हैं और उस घर में दाखिल करना चाहते हैं। जब कोई शख्स आपको अपने घर में दाखिल कर लेता है, बिठा लेता है, तो फिर उसे निकालता नहीं है। और यहाँ भी लिखा है कि जो मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल ना दूंगा। और ये खुदावंद की बात है, खुदावंद का वादा है। अगर आप उसके पास जाएंगे, उससे मोहब्बत करेंगे तो वो आपको कभी बाहर नहीं निकालेगा, बल्कि आपको उस राह पर लेकर जाएगा जहां खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। निजात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीले से है। क्योंकि लिखा है और हमेशा की जिंदगी ये है कि वह तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को यीशु मसीह के जिसे तूने भेजा है जाने। यूहन्ना के इंजील 17 बाब और उसकी 3 आयत में आप इस हवाले को जरूर पढ़िएगा। हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यानी खुदावंद यीशु मसीह जो है वही निजात है और वही हमारी सिपर है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसी की है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। यानी जिंदगी जो है आपके पास चल के आ गई है। जब जिंदगी आपके पास चल के आ गई है और यीशु मसीह के खून के वसीले से मुखलिसी आपको दे दी गई है, आपके लिए वो राह हमवार कर दी गई है, आपको वो निजात दे दी गई है, तो फिर क्यों आप उस निजात से दूर हैं? क्यों गाफिल हैं उस निजात से? आए उस निजात को अपनी जिंदगी में हासिल करें और खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में बढ़ने दें ताकि आप उस गुनाह से बच सकें। क्योंकि लिखा है कि जो उसके बेटे यीशु मसीह का खून जो है हमें उन तमाम गुनाहों से पाक कर सकता है, साफ कर सकता है। क्योंकि यीशु मसीह का खून, यीशु मसीह का लहू जो है हमें धो के, पाक करके, साफ करके उस राह में लेके जा सकता है। अगर आज आपके पास
یہ خوشخبری نہیں ہے۔ اگر آج آپ دنیا کی فانی چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور دنیا کے بارے میں آپ بہت ساری ایسی باتیں رکھتے ہیں کہ شاید دنیا میں سے آپ کو نجات ملے، تو دنیا میں سے آپ کو نجات نہیں ملے گی۔ خداوند کا اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، کیونکہ یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے یہ کہہ دیا تھا کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور ان کو نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ جب نجات خداوند یسوع مسیح نے دے دی ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس نجات کو اپنی زندگی میں ریسیو کریں، یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اقرار کریں اور اس راہ کو جس راہ پہ خداوند آپ کو لے جانا چاہتا ہے، یعنی آسمانی حوانوں میں، آسمانی مقاموں میں، آپ اس مقام میں ضرور جائیں اور خداوند کی وفاداری میں، تابعداری میں زندگی گزاریں۔ آج کے اس کلام کے وسیلے سے جو راہ نجات کا میسج تھا آپ تک پہنچا، آپ نے سنا، قبول کیا۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔